Hello students, I am Rajkumar from DY Badil Academy. Today we are going to discuss about application of circular motion. Already हम लोग previous lecture पढ़ चुके हैं what is centripetal force and उसका जो effect होता है that is centrifugal force. Already पढ़ चुके हैं centripetal force is directed toward the center and centrifugal force directed away from the center. So the first application is car moving on horizontal curve road. Okay, let's say there's circular track and let's say there's a car. Suppose कर लो ये कार है और ये this car is moving along curve road. Now, तो what will happen? While this car is moving, जब ये कार circular track में move कर रहा है, then what will happen? This car will experiences centrifugal force away from the center. Now why? Because velocity of this car keep on changing. Velocity means direction keep on changing. That's why velocity is changing. और velocity changing is an accelerated motion. और आपको मालूम है accelerated motion में क्या होता है? The car experiences pseudo force, that is centrifugal force away from the circular track. Then what will happen? Friction, which is directed toward the center of circular track. Let's say the circular track here of radius r, this is center. Okay, now so the tendency of this car to move away from the circular track by because of centrifugal force. Okay, then what will happen? Friction, आपको मालूम है कि while moving on a road, friction is very helpful. तो friction क्या करेगा? Friction will try to save this car. Friction इस कार को सेव करने की कोशिश करेगा. कैसे करेगा? The direction of friction देखो किधर है? Toward the center of circular track. So ये friction will provide what? Circular motion के लिए हमको मालूम हमको क्या? What is required? Centripetal force. तो ये जो friction है ना, it will tries to save the car. कैसे करेगा? तो फ्रिक्शनल फोर्स ये क्या करेगा? एक नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स देगा फॉर सर्कुलर मोशन. दैट इज सेंट्रीपिटल फोर्स फॉर सर्कुलर मोशन. फ्रिक्शनल फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? दैट इज म्यू इनटू एन. और सेंट्रीपिटल फोर्स आपको मालूम है वेरियस फॉर्मूलेज एम वी स्क्वायर अपॉन आर, एम आर ओमेगा स्क्वायर. लेट्स से हम लोग ले लेते हैं एम वी स्क्वायर अपॉन आर. Now just here, let's say mass of this car is m, the normal force is upward and weight is downward. So in place of normal force, you can write weight of the car mg, that is mu mg. अच्छा ये जो mu है क्या होगा? Static friction होगा, kinetic friction होगा. जो tendency है कार की वो move away from the circular track. Car is moving straight, लेकिन वो side में जाना चाहता है. तो ये static friction होगा. This is static friction. Coefficient of static friction, that is equal to mv square upon r. So mass cancel हो जाएगा, velocity क्या हो जाएगा? अंडर रूट ऑफ म्यू एस आर इंटू जी. सो ये जो फॉर्मूला है किसका आ गया? सेफ्टी लिमिट. ऐसा नहीं कि फ्रिक्शन हमेशा बचा लेगा. नो, दिस इज सेफ्टी लिमिट. सेफ्टी लिमिट ऑफ दिस कार. इसका मतलब कार विल बी सेफ अगर वेलोसिटी ऑफ कार शुड बी लेस देन और इक्वल टू दिस वन अंडर रूट ऑफ म्यू एस आर इंटू जी. मीन्स वो रेडियस पे डिपेंड करता है, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डिपेंड करता है, और ऑफ कोर्स जो फ्रिक्शन का जैसे कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन पे भी डिपेंड करता है. सो दिस इज ऑल अबाउट द फर्स्ट एप्लीकेशन. बट वन थिंग आपको मालूम है कि जो फ्रिक्शन फोर्स है दैट इज नॉट रिलायबल. आपको मालूम जैसे आपको सपोज अगर रेनी सीजन होता है, वाटर अगर रोड पे काफ़ी अगर वाटर लॉगिंग हो जाता है तो क्या होता है? फ्रिक्शन कम हो जाता है. या किसी ऑटोमोबाइल का कोई कार का ऑयल स्पिल कर जाए तो भी फ्रिक्शन कम हो जाता है. इसका मतलब फ्रिक्शन रिलायबल नहीं है. सो बट एटलीस्ट फ्रिक्शन विल डेफिनेटली हेल्प लिटिल बिट टू सेव दिस कार. ओके, Now this is all about the first application. Now let us come to the second application. Second application is
well of death. ना वेल ऑफ डेथ आप सबने देखा होगा, किसी फेयर में जाते हैं, मेले में जाते हैं, तो वहाँ पे देखते हैं जैसे देयर इज अ मोटरसाइकिलिस्ट जो एक वेल जैसा बना देते हैं, उसके अंदर वो सर्कुलर मोशन करता है. ओके, नाउ जस्ट हियर सपोज कर लो दिस इज अ हॉलो सिलेंडर. ओके, और आपको मालूम है यहाँ पे कोई एंट्रेंस पॉइंट होता है और कार अंदर कार या मोटरसाइकिल एंटर करता है और वो सर्कुलर मोशन करता है. तो लेट्स से अ पर्सन एंटर्स थ्रू समवेयर. ओके, और सपोज कर लो पर्सन इज हियर और वो सर्कुलर मोशन कर रहा है. ओके, तो व्हाट द रेडियस ऑफ दिस सर्कुलर ट्रैक, लेट्स से आर. ओके, तो सपोज मोटरसाइकिलिस्ट इधर है और उसका मास क्या है m और सर्कुलर मोशन कर रहा है. ओके, तो व्हाट विल हैपन, सो मोटरसाइकिलिस्ट सिलेंडर के सरफेस पे कांटेक्ट में है तो क्या डेवलप हो जाएगा, नॉर्मल फोर्स. और क्योंकि मोटरसाइकिलिस्ट जो है वो सर्कुलर मोशन कर रहा है तो अगेन सर्कुलर मोशन का इफेक्ट क्या होता है, हम लोग पढ़ चुके हैं, दैट इज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्कल, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स. नो, लेकिन मोटरसाइकिलिस्ट नीचे स्लिप कर सकता है, तो फ्रिक्शन फिर ऊपर की नीचे स्लिप क्यों करेगा, बिकॉज ऑफ वेट. तो वेट नीचे की तरफ आएगा mg, और फिर फ्रिक्शन किधर होगा, अगर नीचे आना चाहेगा मोटरसाइकिलिस्ट, फ्रिक्शन उसको रोकने की कोशिश करेगा. मोशन जो टेंडेंसी होती है मोशन की उसके अपोजिट होता है, तो फ्रिक्शन ऊपर की तरफ होगा, अपवर्ड, दैट इज F. नो, मोटरसाइकिलिस्ट परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन, तो उसकी जो बॉडी होगी बिल्कुल बैलेंस्ड होगी. बैलेंस मतलब ऑल द फोर्सेज आर बैलेंस्ड. तो व्हाट विल हैपन, देखो जरा, जो फोर्स है वो किसके अपोजिट है, नॉर्मल फोर्स को, तो उसको बैलेंस कर लेगा, और जो अपवर्ड फोर्स फ्रिक्शन है ना, वेट को बैलेंस कर लेगा. ओके, सो यू कैन से हियर, अगर हम वर्टिकल फोर्सेस को बैलेंस करें तो क्या होगा, फ्रिक्शनल फोर्स किसके इक्वल हो जाएगा, वेट के इक्वल हो जाएगा, दैट इज mg, वेट mg है. ओके, ना, और फ्रिक्शनल फोर्स का फॉर्मूला आपको मालूम है, फ्रिक्शनल फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज म्यू इंटू n. तो यहाँ पे आ जाएगा म्यू इंटू n इज इक्वल टू mg. और नॉर्मल फोर्स, जस्ट सी द डायग्राम, नॉर्मल फोर्स किसके अपोजिट है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के अपोजिट है. तो नॉर्मल फोर्स सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के अपोजिट है. सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बहुत से फॉर्मूले होते हैं, यू कैन टेक mv स्क्वायर अपॉन r, आप ये भी ले सकते हैं mr ओमेगा स्क्वायर. ओके, सो चलो मैं ये फर्स्ट वाला फॉर्मूला ले लेता हूँ, mv स्क्वायर अपॉन r. तो म्यू इंटू n, n की जगह हम लोग क्या लिख देंगे, दैट इज जस्ट n की जगह हम लोग लिख देंगे, दैट इज mv स्क्वायर अपॉन r इज इक्वल टू mg. तो वेलोसिटी हमको मिल जाएगा, तो वेलोसिटी क्या मिल जाएगा, मास विल गो ऑफ, वेलोसिटी मिल जाएगा अंडर रूट ऑफ rg अपॉन म्यू. सो इस वेलोसिटी से अगर ये मोटरसाइकिलिस्ट सर्कुलर मोशन करेगा इन दिस हॉलो सिलेंडर, तो उसकी बॉडी बिल्कुल बैलेंस रहेगी. ओके, नाउ अगर सपोज कर लो अगर उसकी एंगुलर वेलोसिटी चाहिए ओमेगा, तो आपको मालूम है v और ओमेगा में क्या रिलेशन होता है, v इज इक्वल टू r ओमेगा. सो v इज इक्वल टू r ओमेगा हो जाएगा. ओके, सो ओमेगा इज v अपॉन r, तो v इज इक्वल r ओमेगा कर लेते हैं हम लोग, v इज इक्वल टू r ओमेगा. v क्या है, दैट इज r g अपॉन म्यू इज इक्वल टू r इंटू ओमेगा. सो ओमेगा क्या आ जाएगा, ओमेगा, r विल कम डाउन, वो स्क्वायर रूट के अंदर जाएगा तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, 1r विल गो ऑफ, तो क्या हो जाएगा g अपॉन r इंटू म्यू. सो एग्जाम में समटाइम दे विल आस्क velocity, sometimes they ask angular velocity. Okay, now this is all about second application. Two applications right now, one is car moving in horizontal curve road and second one is well of death. Okay, now both the applications are very important for Maharashtra CET. Okay, now और आपको जो previous exams थे MSCET को, उसमें जो कार मूविंग हॉरिजॉन्टल कर्व रोड, उस पर नंबर ऑफ न्यूमेरिकल्स आ चुके हैं और अभी भी चांसेस होते हैं आने के. और रिगार्डिंग दिस वन वेल ऑफ डेथ, इसमें दो तरह के क्वेश्चन आते हैं, या तो फिर वो वेलोसिटी पूछेगा, वेलोसिटी ऑफ दिस मोटरसाइकिलिस्ट, या फिर एंगुलर वेलोसिटी पूछेगा. सो ऑप्शंस को देखना पड़ेगा, उसके अकॉर्डिंग आप करेंगे. अगर वेलोसिटी पूछ रहा है तो जस्ट हियर यू कैन डू हियर, अगर एंगुलर वेलोसिटी पूछेगा तो फिर आपको v इज इक्वल टू r ओमेगा करके ओमेगा फाइंड आउट करना पड़ेगा. एंड समटाइम दे आस्क ओनली फॉर्मूला इन द ऑप्शंस, एंड समटाइम इस पे न्यूमेरिकल बेस्ड होते हैं. ओके, तो हम लोग न्यूमेरिकल भी इस पे करेंगे. ओके,